Good morning, sir. Good morning. Okay, so in the last class, we are going through the amplitude demodulation using envelope detector. Okay, let me share that. So, are you able to see the notes? Are you able to see? Yes, sir. Okay. So we are going through demodulation of AM, where we have seen the AM signal as the raw material, and now in demodulation we have to detect the message from the modulated signal. So here we have seen three types: square law detector, envelope detector, and synchronous detector. So in square law detector, we have seen that we have a square law device, and through square law device, the output signal what we have got is passed through an RC filter. Okay. So as we know that capacitor does not allow to pass TC signal or low frequency signal through it, and capacitor allows to pass higher frequency signal. Okay. Capacitor does not allow lower frequency signal and allows higher frequency signal. Okay, ये हमेशा याद रखना है. So in this case, we know that the modulating signal is the low frequency signal and carrier signal is high frequency signal. So क्या होता है, इस कैपेसिटर से कैरियर सिग्नल पास कर जाता है, बट आउटपुट में हमें मिलता क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और द मैसेज सिग्नल, जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है. ओके, सो हियर वी हैव सीन दैट for higher frequency less resistance is offered by capacitor. Next was the synchronous detector, where, so the why it is named as synchronous, because the same carrier or the synchronized carrier is used again at the receiver side, that is on the in the demodulation. Okay, so it is known as synchronous detector, and here also a low pass filter is used because we need to extract the modulating signal, which is a low frequency signal, so low pass filter has been used. Next we have seen envelope detector, where half wave rectifier basically is used, and it is passed through an RC filter, where capacitor, what this capacitor will do, based upon this charging and discharging of the signal of the capacitor, we are getting the output signal, which is more or less in the shape of the envelope. Okay, so here we have two things. One on one hand we have the RC should be low, and on the other hand we have the RC should be high. So there is a trade-off between the value of RC. Okay, RC जो है टाइम कांस्टेंट है, और ये टाइम कांस्टेंट डिसाइड करता है कि कैपेसिटर को चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा. तो पहला चीज क्या है कि यहाँ पर हमें चाहिए क्या कि कैपेसिटर ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं हो, और क्यों, क्योंकि ताकि स्पाइक्स ना बने. और दूसरा चीज है
कि ये सारे पीक्स रीड होने चाहिए, ये सारे पीक्स हमें आउटपुट में आने चाहिए, इसीलिए टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा देन वी विल हैव द नेगेटिव पीक्स विल बी not in the output and we will get a distorted output at the receiver. Okay, so there in the case is diagonal clipping has been there where some of the peaks are left and at the output we will not get the desired result. Okay, so here we have seen that there is a limitation of the RC value, which is this, and from the relation we can derive one more thing, that is the value of RC the value of RC here, the value of RC should lie in a range. So what is that range? That RC, or you can say it as RLC, because R is nothing but the load resistance and capacitor is connected across this load. So this should be in the range of this RLC should be greater than 1 by FC and it is less than 1 by FM. Okay, so this you have to remember, because based upon this formula कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल सी सम प्रॉब्लम्स which will be obviously based upon the theory which we have seen earlier. Okay, so let us see. Okay, so first question is, we have a carrier signal of 1 megahertz. What is mean by mega? What is mean by mega? Yes. 10 to the power 6. Yes. So the carrier signal of 1 megahertz is amplitude modulated by a message signal of 2 kilohertz. Okay, so you have to tell me the proper choice of time constant, that is RLC. You have to tell me the value of time constant for envelope detector. ओके, तो जिस इन्वेलप डिटेक्टर से हमें इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा फ्रॉम द कैरियर ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज एंड फ्रॉम द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑफ बाय अ 2 किलोहर्ट्ज सिग्नल, ओके, तो वो रेंज क्या होगा? ओके, सो the proper choice of time constant RLC for envelope detector should be, okay, मान लें यहाँ पर
वैल्यूज दिया हो, लाइक आपके पास 4 वैल्यूज दिया है, लाइक जैसे मान लें 1 माइक्रोसेकंड, बी 500 माइक्रोसेकंड, सी एक ऑप्शन दिया है लाइक 200 माइक्रोसेकंड, और डी एक ऑप्शन दिया है 0.5 माइक्रोसेकंड. ओके, सो प्लीज टेल दैट हाउ वी कैन गेट दैट. हमें पूछा क्या गया है ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैरियर सिग्नल ऑफ. सभी कुछ पता चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है डेटा? क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, सभी को पता चल रहा है? Am I audible? Yes, sir. Okay, so if I am audible, then please tell me that what are the data which are given? Carrier signal, message signal का डेटा दिया. Okay, so carrier signal का क्या डेटा दिया हुआ है? कैरियर का क्या? Frequency. Yes. So what is given? Frequency is given. क्या दिया हुआ है? किसका frequency? Carrier FC. FC is given. So FC is given as 1 megahertz. और क्या दिया हुआ है? FM is equal to 2 kilohertz. Yes, very good. So FM दिया हुआ है 2 किलोहर्ट्ज, है ना? क्वेश्चन से क्लियरली दिख रहा है. नाउ हमें बताना है क्या कि प्रॉपर चॉइस ऑफ टाइम कांस्टेंट RLC फॉर इनवर्ट डिटेक्टर शुड बी. ओके, तो हमें देखना होगा, हमने अभी यहाँ पर दिखाया आपको दैट क्या कि जो टाइम कांस्टेंट है, दैट टाइम कांस्टेंट शुड बी इन दिस रेंज, दैट इज इट शुड बी greater than 1 by FC and it should be less than 1 by FM. ओके, सो हमें FC और FM अगर दिया हुआ है तो हम क्या ये रेंज नहीं निकाल सकते हैं? कंडीशन क्या है? FC that is RLC should lie between 1 by FC to 1 by FM. ओके, तो हम क्या करें, FC दिया हुआ है तो 1 by FC निकाल सकते हैं. कितना होगा 1 by FC का वैल्यू बताइए मुझे जल्दी से. इसी तरह से 1 by FM का भी वैल्यू निकाल सकते हैं. वैल्यू बताइए जल्दी से. One by FC is equal to 0.0001. 0 point इतना लिखने की जरूरत नहीं है. ये FC क्या दिया हुआ है? FC दिया हुआ है 1 मेगाहर्ट्ज. तो 1 by FC कितना हो जाएगा? 1 by 1 into 10 to the power 6 होगा. मेगा मीन्स 10 to the power 6. 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या? 1 into 10 to the power 6 हर्ट्ज. ठीक, तो 1 by FC कितना होगा? 1 by 10 to the power 6. ये कितना हो गया? 1 into 10 to the power -6. तो कितना हो गया? 10 to the power -6 को क्या बोलते हैं हम? माइक्रो. माइक्रो. सो कितना हो गया ये? 1 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि ये 1 बाई फ्रीक्वेंसी है. 1 बाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टाइम.
So this is time. So this is 1 microsecond. So ये आ गया क्या? ये आ गया 1 microsecond. Now 1 by FM कितना होगा? 1 by 2 कितना दिया हुआ है? किलो दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये? 1 by 2 into 10 to the power 3 कितना हो गया ये? यहाँ पर 10 to the power -3 आएगा, और 1 by 2 कितना हो गया? 0.5 हो गया। अभी इसे क्या करना है हमें? माइक्रो सेकंड में ही पता करना है। तो 0.5 ये क्या है? 0.5 मिली सेकेंड है। सो मिली सेकेंड को माइक्रो सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? 0.5 हमें यहाँ माइक्रो करना है, मतलब 10 to the power -6 चाहिए। 10 to the power -6 करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ -3, 10 to the power 3 से क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -6। यस खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया? दिस इज 500 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? 1 by FC और 1 by FM मिल गया। सो दिस RLC शुड लाई बिटवीन 1 by FC, दैट इज। अब मुझे बताइए कि 1 माइक्रोसेकंड ज्यादा है या 500 माइक्रोसेकंड ज्यादा है? आर यू गेटिंग इट और नॉट? हमने यहाँ पर क्या अभी फाइंड आउट किया? क्या फाइंड आउट किया हमने? टाइम ये हमने क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पर? हमें क्या निकालना था? टाइम कांस्टेंट का एक ऐसा वैल्यू जिसके लिए कि इन्वेलप डिटेक्टर से हम डिटेक्ट कर सकें। कैरियर सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड is amplitude modulated by message signal of 2 kilohertz. So the proper choice of time constant RLC for envelope detector should be, okay, तो प्रॉपर चॉइस बताना है। 1 माइक्रोसेकंड, 500 माइक्रोसेकंड, 200 माइक्रोसेकंड, ये 0.5 माइक्रोसेकंड, कौन सा होगा आंसर? RLC का वैल्यू 1 माइक्रोसेकंड से 500 माइक्रोसेकंड, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब मुझे बताएंगे कोई कि ABCD में से कौन सा चॉइस होगा? नहीं समझ में आ रहा है किसी को? सर सी। C. So C is the best choice. C जो है ये हमारा बेस्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन है 500 माइक्रोसेकंड, वो नहीं हो सकता है। 1 माइक्रोसेकंड नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? RLC शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 माइक्रोसेकंड। इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर होता तो हम 1 माइक्रोसेकंड ऑप्शन बता सकते थे, और 500 माइक्रोसेकंड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 500 माइक्रोसेकंड से बहुत ही छोटा है। RLC वेरी वेरी लेस देन 500 माइक्रोसेकंड। सो इसलिए 500 माइक्रोसेकंड भी नहीं होगा, 1 माइक्रोसेकंड भी नहीं होगा, और 0.5 माइक्रोसेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये इस रेंज में आता ही नहीं है। 1 माइक्रोसेकंड से भी छोटा है 0.5 माइक्रोसेकंड, इसलिए 0.5 माइक्रोसेकंड तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस रेंज से ही बाहर है। ठीक है, सो द चॉइस इज 200 माइक्रोसेकंड। कोई दिक्कत है? नो सर।
Let us go for the second question. So here एक AM सिग्नल दिया हुआ है. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि मॉड्यूलेशन हम लोग जो डीमॉड्यूलेशन कर रहे हैं यूजिंग इन्वेलप डिटेक्टर. Let me go there first. Okay. Okay. So here in this picture, can anybody tell me that what is the modulation index? Is it greater than 1? Is it less than 1? Or it is equal to 1 for this picture? इस पिक्चर के लिए मुझे बताइए कि ये जो सिग्नल है ये कौन सा टाइप का सिग्नल को शो कर रहा है. मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1? आवाज जा रही है मेरी? जी सर. तो बताइए कि ये कौन से सिग्नल को शो कर रहा है. मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1? कोई पढ़ते लिखते नहीं हो. हमारे पास एक सिग्नल है. हमने कभी बताया था म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू कह लें या मॉड्यूलेशन इंडेक्स कह लें, लेस देन 1 एंड म्यू इज ग्रेटर देन 1. इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने कहा था क्रिटिकल मॉड्यूलेशन. इस पर्टिकुलर केस के लिए कहा था हमने अंडर मॉड्यूलेशन. और इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने कहा था ओवर मॉड्यूलेशन. कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? प्रीवियस वीडियो जाकर देखोगे, क्योंकि सारा कुछ हम डेली डिस्कस नहीं कर सकते हैं. एक ही चीज बार बार. So here the AM signal is given by ST is equal to AC cos of omega CT plus 2 cos omega CT plus cos omega CT cos omega MT. Okay, so here the AM signal is given here. Okay, so here you have to find out for proper detection using
envelope detector. The maximum value of maximum value of AC should be AC क्या है? Options are 0.5 volt, 2 volt, 1 volt, and last option is 2.5 volt. Okay, so what we have to do here, that AM signal is given and you have to find out for proper detection using envelope detector, the maximum value of AC should be. Okay, तो ये जो सिग्नल दिया हुआ है, so we have to put this signal into standard form and then we can find out whether it is how we can move further. Okay, तो जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या है? हम क्या जानते हैं? ST is equal to A cos omega CT 1 plus MA cos omega MT. यही है स्टैंडर्ड फॉर्म. सो हियर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा? ऑन कंपेयरिंग what we will get, that ST is equal to, हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट वाले ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है वहां से क्या करें? AC cos ओमेगा CT कॉमन निकाल लें. AC cos ओमेगा CT हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस यहां पर क्या आएगा? 2/AC cos ओमेगा MT. ओके, आएगा ऐसा या नहीं आएगा? आएगा सर. ओके, तो यहां पर अभी क्या करें? मैंने ये चीज आप लोगों से अभी पूछा था, जो ये जो पोर्शन मैंने पूछा, तो एनवेलप डिटेक्टर के लिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू है, दैट शुड बी मॉड्यूलेशन. हम एनवेलप डिटेक्टर का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू क्या हो? लेस देन इक्वल टू 1 हो, तभी हम एनवेलप डिटेक्टर से सिग्नल को डिटेक्ट करके आउटपुट पा सकते हैं. ओके, और लेकिन अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? मैंने एक ग्राफ बनाकर आप लोगों को समझाया भी था, तो आप लोगों को याद नहीं है कुछ. सो हियर व्हेन वी विल कंपेयर, तो हमें यहां से मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू क्या मिलेगा फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन? मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? यस, तो ये इस यहां से तो क्लियर तो दिख रहा है, ये ST इज इक्वल टू A cos ओमेगा CT 1 प्लस MA cos ओमेगा MT है, और ये ST AC cos ओमेगा CT 1 प्लस 2/AC cos ओमेगा MT है. इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करके MA का वैल्यू नहीं बता सकते तुम लोग? क्लियर तो दिख रहा है, यहाँ MA है और यहाँ 2/AC है, तो क्या यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि MA का वैल्यू 2/AC होगा? और मैंने ये बताया क्या कि फॉर यूजिंग एनवेलप डिटेक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमें जो डिटेक्ट करना है वो डिटेक्ट करना है यूजिंग एनवेलप डिटेक्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन.
और एनवेलप डिटेक्टर से हम तभी डिटेक्ट कर सकते हैं जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 से कम हो। सो दिस 2/AC शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से AC का क्या वैल्यू आएगा बताइए? टू। AC को इधर भेज दें, क्या हुआ ये? AC is greater than equal to 2. तो AC शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। ओके, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन सा आंसर होगा? B सर। बी होगा। ओके, सो you can get the value of AC by using the theory what we have discussed also. So आप पहले का वीडियोस देखिए, आप नोट्स बनाइए। आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं आप सभी लोग? कितने लोग नोट्स बना रहे हो जो पढ़ रहे हो? जो भी पढ़ रहे हो कितने लोग नोट्स बना रहे हो? यस सर बना रहे हैं। ओके, और कौन बना रहे हो? सर थोड़ा नहीं बनाया सर, बोल दीजिए ना भेजने के लिए, पिछला वाला छूट गया है। क्या बोल रहे हो? सर पिछला वाला छूट गया है सर, थोड़ा बोल दीजिए ना हेल्प करने के लिए। बोल दे हेल्प करने के लिए किसको? सर जो भी नोट्स बनाया सर, उस समय ट्रेनिंग कर रहे थे ना सर, तो मेरा छूट गया था। क्या छूट गया था? क्लास छूट गया था? यस सर, यस सर। तो क्लास छूट गया था तो वीडियोस अवेलेबल नहीं है? यूट्यूब में वीडियोस क्यों हम अपलोड करते हैं? यूट्यूब में वीडियोस क्यों अपलोड किया जाता है? आशीष, देख लेंगे सर। इसलिए तो अपलोड करते हैं ना, ताकि अगर क्लास छूटा भी है तो उसको देखकर मेकअप किया जा सके। हो जाएगा सर। ठीक है, और बाकी लोग? आकर्ष, शिवम, नोट्स बना रहे हो? यस सर। ये तुम्हारा ओके, ऐसा नहीं कि मूवी की तरह देख लिए एक बार वीडियोस, हो गया काम खत्म। ओके, सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको एक छोटा सा चीज और याद रखना है जो कि ओके, सो लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज लाना भी थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर। ब्लैंक पेज कहाँ आ गया भाई? यहाँ आ गया ब्लैंक पेज। सो आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद रखनी है। That in note you have to be in mind that for mu, what is mu? mu से मैं किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यस, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। डिफरेंट बुक्स में कहीं पे आप म्यू देखिएगा, कहीं पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स m देखिएगा। सो फॉर म्यू लेस देन इक्वल टू 1, द आउटपुट of envelope detector will be AC 1 plus KAMT, and for mu greater than 1, the output of envelope detector will be mod of AC 1 plus KAMT.
empty. Now, what is this K? K is the sensitivity. Okay, K is known as the sensitivity of the or amplitude sensitivity. ओके तो हमने जो अभी तक देखा है वहां पर के एम टी वहां पर आता है एक्चुअली क्या, एम टी का जब वैल्यू रखते हैं तो वहां पर हमें मिलता है ए एम बाई ए सी, ऐसा कुछ मिलता है, और यहाँ से रिलेटेड हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलता है। तो ये के जो है ये एक्चुअली इसी से रिलेटेड है with the ratio of AM by AC, that is modulation index. We will see it in the next class. Okay, so आज के लिए इतना ही रखते हैं. In the next class we will go for DSB-SC modulation. So DSB-SC modulation, DSB-SC का फुल फॉर्म क्या है? डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वी विल हैव ओनली द टू साइड बैंड्स and we do not need the carrier. Okay, so इस बार अगर हम ST दिखाएं, so that modulated signal will be AC cos omega CT cos omega MT only. सिर्फ यही पोर्शन हमें मिलेगा. पहले हमें क्या मिल रहा था? पहले हमें मिल रहा था AC cos ओमेगा CT एक टर्म मिलता था और प्लस में हमें ये मिलता था, ये वाला पोर्शन है ना. तो इस बार हमें करना क्या है, इस AC वाले पोर्शन को हमें AC cos ओमेगा CT वाले पोर्शन को हमें हटा देना है ना, रिमूव. तो हमें मिल जाएगा क्या, तो पहले जो मिल रहा था वो मिल रहा था डबल साइड बैंड फुल कैरियर. ओके, नाउ इस बार हमें चाहिए क्या, double side band suppressed carrier. So this carrier will be suppressed and we will have only the side bands. So हम इसे जब elaborate करेंगे, इसे जब हम फॉर्मूला में ब्रेक करें तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या, we will have AC by 2 cos of omega C cos of omega MT. इसे हम ब्रेक करें तो AC by 2 cos A cos B is equal to cos A plus cos B, cos A plus B plus cos A minus B, है ना. तब हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ये दो साइड बैंड्स मिलेंगे, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड. ओके, सो दिस इज नोन एज डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. और जब हम कैरियर को सप्रेस करते हैं तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या, जब डबल साइड बैंड हम पढ़ रहे थे यानी डबल साइड बैंड फुल कैरियर पढ़ रहे थे, इन दैट केस वी विल हैव द टोटल साइड बैंड पावर इज इक्वल टू व्हाट, द कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर. और इस कैरियर में अप्रोक्सीमेटली कितना पावर कंज्यूम हो रहा था, कितना पावर कंज्यूम हो रहा था कैरियर को ट्रांसमिट करने में, नहीं याद है, कुछ नहीं याद है. So approximately 66% of power was consumed in this, and we have only 33% of power is consumed here. Okay, when in the case when we have the modulation